Class 3rd. Today we are going to study English MCV book. In this we will be studying the lesson number 1. It's mother tongue. Mother tongue का क्या मतलब होता है बच्चों? मातृभाषा. So now as I read the lesson you must see that how I read the lesson, how I spell the words, how I use the punctuation marks. So you have to do according to that when you watch my video. Now coming to the first paragraph, Akbar was the greatest Mughal emperor of India. So Akbar was greatest means बहुत आप ये कह सकते हैं कि अकबर जो थे वो एक महान मुग़ल शासक थे भारत के. Birbal, a courtier in his darbar or court, became his most trusted friend and advisor due to his wit and wisdom. So Birbal, a courtier in his darbar. So Birbal was a courtier. Courtier means a person who is in court, means who work for the king is a courtier. So Birbal, a courtier in his darbar or court, became his most trusted friend. So Birbal became his trusted friend and advisor, means he used to give advice to the king because he had all type of tactics as well as wisdom. Now today the stories of Akbar and Birbal have become a part of a folklore. तो क्या है कि आजकल जो अकबर और बीरबल की जो स्टोरीज़ हैं वो हिस्सा बन चुकी हैं folklore. folklore मतलब लोक साहित्य, मीन्स जैसे जो कहानियाँ हम लोग सुनाते हैं उसी को कहते हैं folklore, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ्स होते हैं उसी को folklore कहते हैं. Now Akbar would have many visitors at the royal court, poet, artists, priests and foreigners from different parts of the world. So Akbar would have many visitors at the royal courts. So many visitors means many people visited at the royal court. They were like poets, artists, priests and foreigners from different parts of the world. So these all were from different parts of the world, means दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई विजिटर आते थे. विजिटर मतलब जो उनसे मिलने आते थे. और वो क्या क्या हो सकते थे? पोइट हो सकते थे. पोइट मतलब जो पोएम लिखते हैं. आर्टिस्ट मतलब जो कुछ जिनके अंदर कोई एक कला का गुण होता है वो आर्टिस्ट होता है. और प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी. एंड फॉरेनर मतलब विदेशी. One day a learned पंडित visited the court of Emperor Akbar. एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही विद्वान पंडित था, वो आया कहाँ पे? राजा के दरबार में. किस राजा के दरबार में? अकबर के. He claimed to know a number of languages. Claimed मतलब कहना कि हाँ ऐसा है, अपनी बात को सिद्ध करना, कहना, अपनी बात पे बहुत प्रमुखता से कहना. तो ही क्लेम टू नो अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. तो उन्होंने क्या कहा कि हमें तो बहुत सारी भाषाएं आती हैं. ही बोस्टेड दैट ही कुड कन्वर्स फ्लुएंटली इन ऑल दीज लैंग्वेजेस. तो उसने, बोस्ट का मतलब होता है ना जब कोई भी अपनी तारीफ करता है बड़ा चढ़ा के, तो उसको कहते हैं बोस्टेड. सो ही बोस्टेड दैट ही कुड कन्वर्स फ्लुएंटली इन ऑल दीज लैंग्वेजेस. तो उसने अपनी तारीफ करते हुए बोला कि वो बहुत ही आराम से बिना रुके बेधड़क किसी ये जो भाषाएं बताई हैं, मतलब उसने बोली थी कि इन भाषाओं में हम बोल सकते हैं, तो उन भाषाओं में वो आराम से बात कर सकता था बेधड़क होके, बिना रुके. यानी उसके कहने का अर्थ ये था कि वो उसको उन भाषाओं पर महारत हासिल थी. Now the Pandit challenged anyone to ask him questions in his mother tongue. So he said that anyone can ask him questions in his mother tongue. He was able to answer each courtier, means any people can ask in his mother tongue with the Pandit. So he was able to answer each courtier's question in his respective language.
So now he answered each courtier's question in his respective language. Means whatever language the courtiers had, he answered them in their language only. Means the languages were Sanskrit, Arabic, Telugu, Punjabi, Bengali. So in these languages the पंडित आंसर्ड द कोर्टियर्स. तो कौन कौन सी भाषा थी? संस्कृत, अरेबिक, हिंदू, पंजाबी और बंगाली, तेलुगु भी है. ठीक. नाउ सरप्राइजिंगली, अब बड़े आश्चर्य की बात है, सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्य की बात है कि ही इवन आंसर्ड अ फ्रेंच नोबल मैन्स क्वेश्चन टू हिम इन फ्रेंच. अब आश्चर्य की बात तो तब हुई कि जब उसने तो फ्रेंच नोबल मैन, मतलब फ्रेंच का कोई एक महान नोबल मैन मतलब होता है ना विशिष्ट व्यक्ति, जैसे राजा होता है या राजा का बेटा जो मतलब ऊंचे ओहदे पे होता है, तो एक फ्रेंच नोबल मैन था, उसके प्रश्न का जवाब दे दिया फ्रेंच में. तब तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ. एवरीवन वाज मोस्ट इम्प्रेस, और सभी पर बहुत ही इसका गहरा प्रभाव पड़ा. नाउ वी विल मूविंग टू नेक्स्ट पेज. Akbar gave him a bag full of gold and silver coins as a reward. So now what happened? Akbar gave the Pandit a bag full of gold and silver coins. Now, मतलब क्या है कि अकबर ने, अब उससे तो खुश हो गए पंडित से, तो पंडित को क्या दिया? एक बैग भर के गोल्ड और सिल्वर के सिक्के. गोल्ड और सिल्वर तो जानते हैं आप लोग, एक मेटल होता है, तो उसी मेटल के सिक्के दिए इनाम के तौर पर, क्योंकि वो राजा जो अकबर था वो बहुत खुश हो गया था. किससे? पंडित से. नाउ बिफोर लीविंग द कोर्ट ही थ्रू अ चैलेंज टू द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स टू फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वाज. अब बिफोर ही लीविंग द कोर्ट, सो ही वाज अबाउट टू लीव, बट व्हाट ही डिड, he threw a challenge to the king. Means he gave challenge to the king here, that as well as to his ministers, to find out that what his mother tongue was, because he wanted that these people should tell about his mother tongue. He wanted the answer the next morning. So he said, you should answer it to me the next morning. Should you or your courtiers fail, your highness, you will have to admit that my knowledge is superior to that of yours and all others who are present here, he said. So should you or your courtiers fail, मतलब राजा से बोला उन्होंने, पंडित ने, कि अगर आप या आपके जो दरबारी हैं, कोर्टियर है, ये अगर हार गए मुझे या उन सक्षम नहीं हुए बताने में कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, तो समझ लीजिएगा कि आपको मानना पड़ेगा कि जो मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, वो सबसे विशिष्ट है, आपसे भी और आपके सभी कोर्टियर से भी, मतलब मैं ज्ञानी ज़्यादा हूँ. अकबर एक्सेप्टेड द चैलेंज. अब अकबर ने तो एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, एंड मेड हिम इज ऑनर्ड गेस्ट फॉर द नाइट. और कहा कि आप मेरे बहुत ही सम्मानजनक या सम्मानीय कह सकते हैं, सम्मानीय गेस्ट हैं. गेस्ट मतलब होता है अतिथि. तो आज रात को आप हमारे सम्मानीय अतिथि हैं. द मोमेंट द पंडित टर्न्ड हिज बैक ऑन देम. अब जैसे ही पंडित जी मतलब वहाँ से गए, अकबर टर्न टू हिज कोर्टियर्स फॉर एन आंसर. अब अकबर ने कहा कि जाइए फटाफट आंसर देख हमें बताइए, मुझे आंसर चाहिए, मुझे हार नहीं चाहिए इन पंडित जी से. Everyone started to think. अब सब लोग सोचने लगे, अरे अब क्या करें. Someone frowned and scratched their heads. अब कुछ लोग तो बहुत नाराज हो गए और कुछ लोग तो अपना सिर भी खुजलाने लगे, क्योंकि भाई जब परेशानी होती है तो हम लोग ऐसे ही तो करते हैं कि क्या करें क्या करें. तो ऐसे ही सब लोग बहुत परेशान हो गए कि कैसे इनकी मातृभाषा जाने. ये तो सभी भाषाओं में अच्छा मतलब नॉलेज रखते हैं और हर भाषा को में बात करने में भी सक्षम है. So some sat and played with their mustaches. तो कुछ तो बैठ गए और अपने मूँछों से ही खेलने लगे. Mustaches मतलब मूँछ. While
A few got up and started to walk up and down. कुछ तो खड़े हो गए और चलने लगे इधर उधर. All in deep thought, और बहुत ही गहरे सोच में सब डूबे थे. No, they gave up after some time. और लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने हार मान ली. As they could not think of any way to find out. कि उन्हें कोई रास्ता तो दिख ही नहीं रहा था पता करने का. When the pandit's mother tongue, what the pandit's mother tongue could be, मतलब पंडित की मदर टंग क्या है वो किसी को नहीं समझ में आ रहा था. अकबर नाउ टर्न टू बीरबल. अब अकबर को और कोई नहीं मिला. कौन मिला? बीरबल जी. Who too had a knowledge of many languages. उनको तो बहुत सारी भाषाओं की ज्ञान था. तो अकबर ने कहा हाँ ठीक है, बीरबल हमारी इस समस्या का हल ज़रूर निकाल लेंगे. एक तो वो ज्ञानी भी है और भाषाओं का ज्ञान भी रखते हैं और चतुर भी हैं. बीरबल, आवर ऑनर इज़ एट स्टेक. और उनका बीरबल जी हमारा जो सम्मान है इस समय खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि हमको चैलेंज दिया किसने? पंडित जी ने. वी होप यू विल नॉट लेट अस डाउन. मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे नीचा नहीं दिखवाओगे. बीरबल रिप्लाइड. बीरबल ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी यू विल गेट द आंसर टुमारो मॉर्निंग. उसने कहा राजा जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर कल सुबह मिल जाएगा. ही बोड टू द किंग. उसने राजा को सलाम किया झुककर. बोड मतलब झुककर सलाम करना. एंड वॉकड आउट ऑफ द हॉल. और हॉल से चले गए. द स्नोरिंग पंडित हैड अ विजिटर इन हिज रूम लेट दैट नाइट. अब क्या हुआ, जब पंडित जी सो रहे थे. स्नोरिंग मतलब होता है खर्राटे मारना. देखा होगा कुछ लोग सोते हैं तो खर्राटे मार के सोते हैं, तो वैसे ही पंडित जी भी खर्राटे मार के सो रहे हैं. देख लीजिए चित्र, आराम से सो रहे हैं खर्राटे मारे. सो द स्नोरिंग पंडित हैड अ विजिटर इन हिज रूम लेट दैट नाइट. तो क्या हुआ, जब पंडित जी सो रहे थे खर्राटे मार के, तभी एक कोई व्यक्ति उनके कमरे में आया रात को, काफ़ी रात को. आफ्टर हैविंग हैड अ सम्पचुअस मील, मतलब बढ़िया शानदार भोजन करने के बाद जो पंडित जी थे वो तो सो गए खूब मज़े से. फास्ट स्लीप मतलब खूब गहरी नींद आ रही थी उनको. ऑन ए लग्जीरियस बेड. उनका जो बेड था वो तो बहुत ही लग्जीरियस था, मतलब काफ़ी मतलब गुदगुदा था. सॉफ्ट एंड सिल्की, सिल्की था, रेशमी था. सच दैट ही हैड नेवर स्लेप्ट ऑन इन हिज एंटायर लाइफ. मतलब ऐसे बेड पे तो वो कभी पूरी जिंदगी में सोए ही नहीं. बीरबल क्रेप्ट क्लोज टू द पंडित. अब बीरबल धीरे धीरे पंडित के पास आए. ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक, जो कि मतलब पीठ करके, मतलब पीठ नीचे ऊपर को मुँह किए लेटे सो रहे थे. ही हैड विथ हिम अ पीस ऑफ स्ट्रॉ इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक तिनका था. ही बेंट क्वाइटली एंड टिकल्ड हिज लेफ्ट ईयर विद द स्ट्रॉ. अब वो धीरे से झुका और उसका कान ऐसे थोड़ा सा खुजला दिया. आप ये देख रहे हैं, कान में तिनका डाला. ही बेंट क्वाइटली एंड टिकल्ड हिज लेफ्ट ईयर. लेफ्ट ईयर को जाके इस तरह से धीरे धीरे उसमें वो तिनका डाला. द पंडित टर्न ओवर टू हिज लेफ्ट साइड. अब पंडित लेफ्ट को मुड़ गए. एंड लेट आउट अ लाउड स्नोर. खा खा, सोते हैं तो आवाज़ निकलती है, तो उसी तरीके क्या हुआ कि पंडित जी जो थे वो मुड़ गए लेफ्ट साइड को और फिर से खर्राटे मारने लगे. बीरबल टिकल्ड हिम इन हिज राइट ईयर. अब की बार बीरबल ने पंडित जी के राइट ईयर में टिकल किया. पंडित swatted at his ear, let out another snore, kha and turned over. जो पंडित जी थे, swatted का मीनिंग आप लोग यहाँ देख सकते हैं. swatted, hit with a sharp blow. तो किसी को हम लोग कस के मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं? swatted. तो पंडित जी ने क्या किया? कस के कान पे अपने मारा. लेट आउट अनदर, और फिर से खर्राटे मारने लगे. खा एंड टर्न ओवर, फिर मुड़ गए.
So this was your story, mother tongue. Now tomorrow we'll continue with this story. Hope you find it easy to understand it. Thank you.